Good morning, children. Jai Gurudev. Today in Maths, we are going to do chapter 12. The name of the chapter is Can We Share? You must have shared your things, chocolates, tiffins, etc. with your friends. In this chapter, we are going to learn how to share things in equal parts. Basically, we are going to learn division. And you must know that division is opposite of multiplication. So if you have learnt multiplication tables, you are going to find this chapter very easy. And if you haven't learned your multiplication tables, you better go and learn them as soon as possible. So let's start this chapter where we are going to learn dividing things in equal groups. On this first page of the chapter, you can see there are 10 butterflies all total. 5 here and 5 here. So there are total 10 butterflies. How many groups can you see? 2 groups. There are 2 groups and there are 5 butterflies in each group. And you know that 5 multiplied with 2 gives you 10. 5 twos are 10. And 10 when you divide by 2, you get 5. Means 10, let me write here, 10 divided by 2 gives me 5. So when 10 is divided in 2 groups, each group will have 5. Let's see on the next page now. You can see here caterpillars. Here 7, 7 and 7. So if you add all this, how many caterpillars are there all total? Count and write the number here. You will find that there are 21 caterpillars. And how many groups can you see? 1, 2 and 3. So you'll write they are in how many groups? 3 groups. So write here 3. There are dash caterpillars in each group. So how many in each group? This is one group. There are 7. Here also 7. Here also 7. So there are 7 caterpillars in each group. So if you know the table of 7, you will find it easy. You know 7 threes are 21 and 21 when it is divided by 3 gives you 7. See, it's written like this. 21 divided by 3 gives 7. So 7 into 3 gives you this biggest number 21. Now let's see the next figure. How many groups can you see? 4 groups. And in each group, how many laddus are there? 3. Okay. And because there are 4 groups, and each group has 3 laddus, if I use this table of 4 threes I'll get 12. So total number of laddus, I'll write here. There are how many laddus? 12. They are in dash groups. So how many groups can you see here? There are 4 groups. And there are dash laddus in each group. So how many laddus in each group? 3. So 12, when it is divided, see this biggest number we divide always. 12. Out of all these 3, 12 is the biggest number. That is divided by 3. Then I'll get 4. And when 12 is divided by 4, I will get 3. Means the biggest number when it is divided by 3, the answer will be 4. And when it is divided by 4, the answer will be 3. That's how the division is done. So you need to know the tables for division. There is one activity for you on page 163. Here it's given you have to draw 18 stars. So total how many stars you have to draw? 18. And in how many groups? 2 equal groups. Equal means both groups should have same number of stars. Now in the table of 2, where do you get 18? Where will you get 18? 2 how many are? 18. 2 9s are 18. So in each group how many stars you have to draw? You have to draw 9 stars. So draw 9 stars here and 9 stars here. And then you have to write there are dash stars in each group. So in each group how many stars? कितने स्टार बनाए हर एक ग्रुप में? That you have to write here. वैसे एक एक्सरसाइज नीचे है. You have to draw 18 beads. Beads मतलब मोती. So you have to draw beads here. ठीक है, ये नेकलेस के लिए थ्रेड है, इसमें आपको मोती बनाने हैं. सो 18 बीड्स है. पुट देम इन 3 इक्वल ग्रुप्स. सो 3 की टेबल में
आपको 18 कहाँ पे आता है? इफ़ यू नो द टेबल यू विल नो द आंसर. 3 how many are 18? I told you this is the total number. ये टोटल है. 3 ग्रुप्स बनाने हैं हमको 1, 2 and 3. सो 3 की टेबल में 18 कहाँ पे आएगा? 3 6 are 18. सो हर एक ग्रुप में कितने बीड्स या कितने मोती बनाने? 6. तो यहाँ पे आपको इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ओके, दिस वे यू हैव टू मेक 6 बीड्स. ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे. सो जब टोटल करोगे तो इट विल बी 18. एंड देयर आर डैश बीड्स इन ईच ग्रुप. तो हर एक ग्रुप में कितने बीड्स है? 6. यू हैव टू राइट हियर. लेट्स सी दिस पिक्चर ऑन पेज नंबर 163. यहाँ पे एक मामा बर्ड है, वो 12 ग्रेन्स लेकर आती है. यू कैन सी हियर शी ब्रॉट 12 ग्रेन्स और उसके 4 बेबीज़ हैं. तो हर बेबी को उसको इक्वली वो ग्रेन्स खिलाने हैं. तो शी डजंट नो डिवीजन. उसको डिवीजन नहीं आता है क्योंकि शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल लाइक यू. सो व्हाट शी डज इज़ वो हर एक बेबी को एक एक ग्रेन खिलाती है. तो कितने ग्रेन्स ख़त्म हो गए? 4 ग्रेन्स ख़त्म हो गए. उसके बाद वो हर एक बेबी को सेकेंड वाला ग्रेन भी खिलाती है. तो हर एक बेबी ने अब 2 ग्रेन्स खा लिए एंड टोटल 8 ग्रेन्स ख़त्म हो गए. एंड नाउ हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट? 12 में से 8 ग्रेन्स खा लिए बेबीज़ ने. सो 4 ग्रेन्स आर लेफ्ट. 4 ग्रेन्स और 4 बेबीज़ है तो फिर से वो एक एक ग्रेन सब बेबी को खिलाती है एंड 12 ग्रेन्स ख़त्म हो जाते हैं. ओके, सो 12 ग्रेन्स आर डिवाइडेड अमंग 4 बेबीज़. अभी 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 3. आपको टेबल मालूम है 4 3s are 12. तो ये जो बड़ा नंबर है 12 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 3 यू विल गेट द आंसर 4. एंड जब ये बड़ा नंबर व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 4 आंसर आएगा 3. ओके, सो ये टेबल मालूम होनी चाहिए टू नो द डिविजन. नाउ लुक हियर यू कैन सी 3 प्लेट्स. उसमें जलेबी रखी है बट जलेबीज आर नॉट इक्वली डिवाइडेड. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है. सो इक्वल शेयर नहीं किया हुआ है. What you have to do is ये आपको 3 प्लेट में इक्वल नंबर ऑफ जलेबीज रखनी है या इक्वल शेयर करना है. सो फर्स्ट व्हाट विल यू डू? आप टोटल काउंट करोगे. हाउ मेनी जलेबीज आर देयर इन टोटल? इन टोटल देयर आर 9 जलेबीज. 5 + 3 + 1 टोटल 9 जलेबीज है. कितनी प्लेट्स है? 3 प्लेट्स में डालना है. तो आई विल राइट हियर 3. ओके, 3. नाउ 3 को किस से मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा? ये जो टोटल नंबर है ना ये इक्वल टू के बाद लिखना है. नाउ कंप्लीट द टेबल. 3 हाउ मेनीज आर 9? 3 की टेबल में 3 3s आर. ओके, सो 3 3s आर 9. तो हर एक प्लेट में कितनी जलेबी होनी चाहिए? ये. दिस इज द आंसर. क्योंकि इतनी प्लेट्स है और ये टोटल है तो इस टेबल में यहाँ पे जो नंबर आता है दैट्स द आंसर. तो यहाँ पे प्लेट ए में भी 3, बी में भी 3 एंड सी में भी 3. ओके, नाउ फिल दिस. हाउ मेनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर? 9. हाउ मेनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट? अब आफ्टर डिविजन हाउ मेनी जलेबीज? 3 जलेबीज विल बी देयर इन ईच प्लेट. नाउ on page number 165 you can see there are 6 bananas and there are 3 monkeys. What you have to do is to distribute the 6 bananas into these 3 monkeys equally. Equally बांटना है ये 6 bananas. So what I told you is write the total number of thing to be distributed. जो चीज़ distribute करनी है equal to के बाद लिखना है. कितने monkeys है? 3 monkeys है. 3 multiplied with what gives you 6? So 3 multiplied with 2. So 2 is the answer. 3 multiplied with 2 gives you 6. 6 है total number of bananas. 3 is the number of monkeys. ये दोनों नंबर हमारे पास है क्वेश्चन में दिए हुए. So 3 how many are 6? 3 2s are. So हर एक मंकी को कितने बनानास मिलेंगे? 2 बनानास. But अगर 6 बनानास है और 2 monkeys है so what will we do? इक्वल टू के बाद हम 6 लिखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ बनानास है. कितने मंकीज है? 2 मंकीज है. ओके, 2 हाउ मेनीज विल गिव मी 6? यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 2 3s are. सो ये जो नंबर है ये आंसर है. अब हर एक मंकी को कितने बनानास मिलेंगे? 3 बनानास. क्लियर? सो व्हाट यू लर्न जस्ट नाउ इज रिटन एज डिवीजन. ये टोटल नंबर था,
ये नंबर ऑफ मंकीज था. सो 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 2. ये 2 कहाँ से आया? ये टेबल से. 3 2s are 6. Okay, 3 2s are 6. Same way, 6 when it is divided in 2 parts, 2 equal parts. 2 monkeys को देने के लिए 2 parts में divide करना है. तो 6 divided by 2 लिखेंगे and answer is 3. Here 2 3s are 6 है, यहाँ पे 2 3s are 6 होता है, इसलिए जब हम 6 को 2 से divide करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3. This is division. Same way here, if there are 60 bananas and 2 monkeys, so how many bananas will each monkey get? अगर वहाँ पे 60 bananas है तो 60 को हम डिवाइड करेंगे 2 से. तो 2 की टेबल में 60 कहाँ पे आता है? 2 3s are 6 होता है, तो 2 30s are 60. ओके, सो 60 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे एंड हमको आंसर मिल जाएगा. ऐसे ही अगर 600 बनानास को 2 मंकीज में डिवाइड करना है, 600 बनानास 2 मंकीज, तो हम क्या करेंगे? हम 600 को डिवाइड करेंगे 2 से. तो 2 की टेबल में 600 कहाँ पे आता है? टेबल डज नॉट फिनिश एट 10, ये आपको पता होना चाहिए. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, देखो यहाँ पे हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर? 10 कॉइन्स है 5 रुपीज़ के, एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फ्रेंड्स? 5 फ्रेंड्स. तो टोटल 10 इज डिवाइडेड बाय 5. तो हर एक को कितने कॉइन्स मिलेंगे? 2 कॉइन्स मिलेंगे. ओके, 2 कॉइन्स मिलेंगे हर एक को, एंड 2 कॉइन्स मतलब एक 5 रुपये है, दूसरा भी 5 रुपये है, तो 10 रुपीज़ मिलेंगे हर एक फ्रेंड को. ऐसे ही अगर सपोज 16 10 रुपीज़ मिलते हैं 4 फ्रेंड्स को, देखो यहाँ पे लिखा है 16 10 रुपीज़ एंड कितने फ्रेंड्स हैं? 4 फ्रेंड्स है. तो हम 16 को डिवाइड करेंगे 4 से. 4 की टेबल में 16 कहाँ आता है? 4 4s are 16, तो ये आंसर आया यहाँ पे 4. जब हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4s are 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए. ओके, सो 4 4s are होता है 16. सो 4 इज़ द आंसर. और हर एक 10 रुपीज़ नोट था ना, तो 4 10s, क्योंकि एक एक 10 रुपी नोट था. यहाँ पे देखो लिखा है 10 रुपीज़, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया. 4 10s are 40, तो हर एक फ्रेंड को कितने रुपए मिल गए? 40 रुपीज़. ओके, ईच फ्रेंड गेट्स 40 रुपीज़. ऐसे ही 5 फ्रेंड्स को अगर 100 रुपये मिलते तो कैसे शेयर करेंगे? बहुत सिंपल है. 100 को हमको डिवाइड करना है, शेयर करना है 5 फ्रेंड्स में. तो 100 को हम 5 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो व्हेन यू डिवाइड 100 बाई 5, you know 5 20s are 100. अगर 20 की टेबल आती है तो 25s are 100 होता है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 100 आना चाहिए. दिस इज व्हाट इज डिवीजन. डिवीजन इज ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वैसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर. 30 मीटर रोप इज डिवाइडेड. ओके, हरि प्रसाद इज हैविंग ए 30 मीटर रोप. उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो रोप को अमॉन्ग हिज 3 चिल्ड्रन. तो कितने लोगों में डिवाइड होना है? 3 लोगों में. क्या डिवाइड होना है? ये 30 मीटर रोप. सो व्हाट वी विल डू इज़ हम 30 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 लोगों में डिवाइड होना है. सो 3 की टेबल में 30 कहाँ आता है? 3 10s are 30. ओके, 3 10s are 30. हर एक चाइल्ड को कितने मीटर रोप मिलेगा? 10 मीटर. दिस इज हाउ डिविजन इज डन. ऐसे ही सपोज उसके पास 36 मीटर रोप है, तो 36 को 3 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है. तो वी विल राइट इट लाइक दिस, 36 डिवाइडेड बाय 3. तो 3 की टेबल में 36, 3 10s are 30, 3 11s are 33, 3 12s are 36. या 12 की टेबल में 12 3s are 36. तो इस तरह से आपको टेबल्स मालूम होनी चाहिए टू नो डिविजन. एंड अगर 60 मीटर की रोप है, सो हाउ मच ईच चाइल्ड विल गेट? 60 मीटर, so 60 you have to divide by 3. So now let's see how to divide and get the answer. Let's see how to divide a number. Suppose आपको 62 divide करना है 2 से. 62 divided by 2. तो first what we'll do, ये जो बड़ा नंबर है हम इसको लिखेंगे 62, और हम ऐसे एक उल्टा ब्रैकेट और एक ऊपर लाइन बनाएंगे ना. जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और इसकी हमको टेबल पढ़नी है.
पहले हम ये नंबर डिवाइड करेंगे और फिर ये, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है ये इससे बड़ा है, इसलिए हम पहले इसको डिवाइड करेंगे फिर इसको। तो 2 3s are 6, 2 की टेबल में 3 पे 6 आता है, 2 3s are 6। इसको माइनस करेंगे तो बचता है 0। ये माइनस हो जाने के बाद अब हम ये दूसरा नंबर इसको नीचे उतारेंगे, ये 2 नीचे आ गया। अब 2 की टेबल में 2 क्या आएगा, 2 1s are 2, माइनस करेंगे तो बचेगा 0। तो हमारा आंसर कितना आया, 31। तो ये आंसर हो गया। 62 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स मी 31। 75 डिवाइडेड बाई 5। सपोज हमको 75 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट 75 डिवाइडेड बाई 5। जो बड़ा नंबर है वी विल राइट इट लाइक दिस 75, उसको डिवाइड करने के लिए दिस इज हाउ वी मेक इट। और ये जो छोटा नंबर है ये यहाँ बाहर लिखेंगे। अब एक एक नंबर करके पहले डिवाइड करना है। पहले 7 को डिवाइड करेंगे, तो 5 की टेबल में 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10। तो एक ही बार इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 10 तो बड़ा हो गया 7 से, तो 5 1s are 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब डिवीजन मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे, वी आर लेफ्ट विद 2। अब ये जो दूसरा नंबर बचा है 5, हम इसको नीचे लेकर आएंगे 2 के पास, तो ये हो गया दोनों मिलकर 25, ठीक है। अब हम 5 की टेबल पढ़ेंगे, कहाँ हमको 25 मिलता है, तो 5 5s are 25, ठीक, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, मतलब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और कोई नंबर नहीं है यहाँ पे नीचे उतारने के लिए, इसलिए डिवीजन कंप्लीट है। एंड आंसर क्या आया, 15। सो दिस इज द आंसर, जो ऊपर यहाँ पे आया है दैट इज द आंसर। सो 75 डिवाइडेड बाई 5 gives us 50. Let's see one more example. It is 54 divided by 2. So we will write the bigger number 54 inside this उल्टा ब्रैकेट एंड a line above, और ये 2 है वो हम बाहर लिखेंगे। अब 2 की टेबल में 5 या 5 से छोटे नंबर तक 2 की टेबल पढ़ेंगे। तो 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, 2 3s are 6, 5 से बड़ा हो जाता है, तो 2 2s are 4। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 बचा माइनस करने के बाद। अब ये नेक्स्ट नंबर नीचे उतारेंगे 4। अब दोनों मिलके हो गया 14। 2 की टेबल पढ़नी है, जो नंबर बाहर है उसकी ही टेबल पढ़नी है। 2 की टेबल में 2 7s are 14, माइनस करेंगे तो बचा 0। यहाँ पे कोई नंबर और नहीं है नीचे लाने के लिए, और यहाँ पे 0 बचा, तो आवर डिवीजन इज कंप्लीट। एंड 54 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स अस दिस नंबर। व्हाट इज दिस नंबर, 27। दैट्स द आंसर। 24 divided by 3. So what I'll do, the number which is to be divided, जिसको डिवाइड करना है उसको पहले लिखेंगे जो बड़ा नंबर है, फिर ऐसे उल्टा ब्रैकेट और एक लाइन बनाएंगे, और इसको अब हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो पहले ये नंबर ट्राई करेंगे डिवाइड करना, लेकिन अगर ये नंबर छोटा है तो हम दोनों नंबर साथ में लेंगे। 2 को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 3 से छोटा है, तो हम दोनों नंबर साथ में लेंगे। और 24, अब 3 की टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 3 8s are 24, तो ये 8 हम ऊपर लिखेंगे। अब आ गया 24, माइनस करेंगे, बचा 0। सो दिस इज द आंसर। यहाँ जो लिखा है दिस इज द आंसर, सो इक्वल्स टू 8।